हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इजी इजी लाइफ विद निशा। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो कंडक्ट करवाया गया था इंग्लिश सब्जेक्ट का 2015 में। इसकी वैकेंसी थी और एग्ज़ाम डेट थी 21 जुलाई 2016, जिसकी आंसर की जो आई गई थी वो थी 18 नवंबर 2016। तो आज हम शुरू करते हैं इसी एग्ज़ाम पेपर को फॉर आर रिवीजन। सबसे पहले दिया गया है हमें कंप्रीहेंशन पैसेज। लेट वी रीड अबाउट इट। कंप्रीहेंशन पैसेज में दिया है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री वॉज 27 ईयर्स इन द 19th century. However, science and improved technology trebled life expectancy. As technological capabilities improved and life expectancy increased, the number of children per family went down, demonstrating the fact that nature keeps balancing the population figure. After major wars, when large numbers of young and healthy men are killed, the birth rate rises. It continues to rise for 5 years or so after the war's end until the score is rectified. All this happens without the conscious cooperation or even the knowledge of the human concerned. When the probabilities of human survival are poor, nature intervenes to maintain the balance. When the chances of man's survival improve, nature reduces the birth rate. So, the first question is, the author says that throughout history, options are every man died on attaining 27 years of age. The average life of people was 27 years. Option number 3, every man lived beyond 27 years of age or so. नंबर 4, ऑल मैन डाइड आफ्टर अटेनिंग 27 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द एवरेज लाइफ ऑफ पीपल वॉज 27 ईयर्स। Let's move on to question number 2. With the development of science and technology in the 19th century, option 1, people expected more comforts in life, agricultural production improved, people were expected to produce more babies, or option number 4, more people were expected to live longer. तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है बोर्ड ने वो है मोर पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। As science and technology improves, options are the number of babies born becomes directly proportional to life expectancy. The number of babies becomes inversely proportional to life expectancy. Number 3, average life expectancy goes up and birth rate goes down. Or the option number 4, the number of babies is reduced by nature. तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी goes up and birth rate goes down. Let's move on to another question. According to the author, nature's intervention for the adjustment of population goes on. Options are without the conscious cooperation of mankind. Option number 2, irrespective of what human thinks about it. Option number 3, with the active intervention of humans. Number 4, with the eager help of mankind. तो इसके जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विदाउट द कॉन्शियस कॉपरेशन ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फॉल इन बर्थ रेट विद द इंक्रीज इन लाइफ expectancy demonstrate the fact that nature. Options are does not keep on balancing the population figure. Option number 2, keeps on balancing the population figure. Number 3, never bothers to keep on balancing the population figure. Number 4, seldom keeps balancing the population figure. तो इसमें आ जाएगा कि नेचर क्या करती है, कीप्स ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर डे लेबर लाइट डिनाइड इन on his blindness. Milton's in inner voice, God himself, patience or
मरमर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि ये कहाँ किसकी आवाज़ होती है? पेशेंस की। ठीक है। हु रिप्लाइज, ये रिप्लाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मैनी इम्पॉसिबल टास्क डज डन इनैमोरेट इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ हिज पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो ऑप्शंस है 7, 6, 5 और 4। ऑप्शंस आ जाता है इसमें 7। 7 टास्क यहाँ पर इसमें पोएम में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ फार डज डन इन हिज पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एडवाइज द सीकर ऑफ अ ट्रू वुमन टू ट्रेवल टू द फारदेस्ट पोल्स ऑफ द अर्थ for 10,000 days and nights into the center of the earth throughout the universe। तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा for 10,000 days and nights। Let's move on to another question. Question number 9. Where exactly did Wordsworth first espy the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils? किस पे ये 10,000 daffodils को एक ही बार में देखता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, ऑन द मिल्की वे एट नाइट, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द ट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई? व्हेन he is jocund company, when he is in a vacant and pensive mood, when he is on his wanderings, when he is asleep and dreaming। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा when he is in a vacant and pensive mood। Question number 11. How does Shelley in his Ode to West Wind compare himself to wind? कैसे वो कंपेयर करता है? As tremulous, mighty and harmonious, as tameless, swift and proud. Option number 3, as impetuous and incanting. Number 4, as chained and bold। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होता है as tameless, swift and proud। यहाँ पर वो अपने आप को उससे कंपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं। इन द लास्ट स्टांजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड, शैली इवोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज एशेज, प्रोफेसी, लायर, कंपेनियन। क्या वो ऐसा एक विश करता है कि ऐसा वेस्ट विंड जो है वो उसे अपना कैसे बना ले? तो आंसर आ जाएगा इसमें लायर, मेक हिम हिज लायर, अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना ले। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, कीट्स एड्रेसेस द ग्रेशियन अर्न एज एन एटिक शेप इन हिज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बिकॉज इट वॉज फ्रॉम ग्रीस, प्रिजर्व्ड इन एन एटिक, प्लेस्ड इन अ ग्रीक म्यूजियम, और ए रिसेप्टिकल फॉर एशेज। तो हमारा जो आंसर है 13 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रॉम ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू कीट्स विल द अर्न रिमेन टू मैन व्हेन ओल्ड एज शेल दिस जनरेशन वेस्ट? अ फॉरगॉटन हिस्टोरियन, अ फ्रेंड, ए साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ हिज वोज, और एन आर्ट डेसोलेट। तो 14 में जो हमारा आंसर होगा वो हो जाता है अ फ्रेंड। Question number 15. What according to the Duke in My Last Duchess called the spot of joy into Duchess' cheeks beside the presence of her husband? A gift of 900-year-old name, a courteous remark made by the painter, a bow of cherries presented by an officious fool, और the dropping of sunlight in the west। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का वो क्या हो जाएगा? A courteous remark made by the painter। Question number 16. The theme of Nizam Eskil's poem Night of Scorpion is selfless motherhood, helpless husband, hopeless children, restless spectator। तो इसका जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा selfless motherhood। Let's move on to another question. Question number 17. How did the villagers in Night of the Scorpion by Nizam Eskil react to the unfortunate incident? They stayed away in fear. They thronged to the temple to invoke the deity. They cursed and abused the mother for bringing upon them the wrath of God. They came in swarms to console the family। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ये, they came in swarms to console the family।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. What had the scorpion entered the house in Ezekiel's night of the scorpion? He had a diabolic plan. He wanted to test the patience of the villager. He was seeking protection from the steady rain, or he had been conjured by fate. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. He was seeking protection from the steady rain. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. What was not a part of the attire of the eunuchs in Kamala Das poem Dance of Eunuchs? White skirt, heavy silver jewelry, jingling anklets, green tattoos on the cheeks. तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा हैवी सिल्वर ज्वेलरी. ये उसका पार्ट नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. दो द डांस ऑफ द यूनिक्स इन कमला दास पोइम बाय द सेम नेम वॉज लाउड एंड फ्रेंजाइड. देयर सॉन्ग्स वर enchanting and soothing, spiritual and peaceful, sad and melancholy of fairies and elves. तो उसका जो सॉन्ग था, उनका डांस ऑफ यूनिक्स जो था, वो सैड एंड मेलनकली को शो करने वाला था. Question number 21. Despite the visual richness of the poem Dance of Eunuchs, Kamala Das creates an atmosphere of gloom and depression, overpowering hilarity, joy and pleasantness, light gladness. तो 21 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा ग्लूम एंड डिप्रेशन. ये इसके आंसर को डिपिक्ट करता है. Let's move on to question number 22. In Shakespeare's Macbeth, who is Ross referring to when he uses the description Bellona's bridegroom? तो यहाँ पर बताने हैं. ऑप्शंस दिए गए थे बैंको, मैकडोनल्ड, मैकबेथ या फ्लुएंस. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुद मैकबेथ, यानी कि शेक्सपियर के मैकबेथ में हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनास ब्राइडग्रूम. बेलोनास ब्राइडग्रूम का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है रॉस के द्वारा, तो वो किसके बारे में होता है? मैकबेथ से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वॉज द हॉप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ? वट हॉप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ? टू किल मैकडफ, टू बी किंग हेयर आफ्टर, to get the damned spot of blood out, to believe that Banquo's ghost would not plague Macbeth. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा टू बी किंग हेयर आफ्टर. ये होप वो करती है लेडी मैकबेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट? शेक्सपियर का एज यू लाइक इट जो हम प्ले देखते हैं उनमें से ये कौन सा गाना इसमें नहीं दिया गया है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, व्हाट शैल ही हैव द किल्ड द डियर. नंबर 4 ऑप्शन, हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश. तो 24 में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर 4 ही, हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश. ये सॉन्ग नहीं दिया जाता है. देखिए बहुत डिटेल आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट ग्रेड है, एक स्टैंडर्ड है एग्जाम पेपर का, तो डिटेल उसका रीडिंग कर होना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर? फीब, गैनमेट, सिल्वियस, एलिना. तो 25 में हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन उसको सिखाता है? वो गैनमेट सिखाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में. इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज second childishness and mere oblivion, infant mewling and peeking, lean and slippered pantaloon, fair round belly with the with good cap and lined. तो यहाँ पर लास्ट सीन जो है वो क्या बताता है? सेकेंड चाइल्डिशनेस को बताता है. मेयर ओब्लिवियन मतलब समझ जो है वो ना के बराबर रह जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा जो क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू बेकन, टू यूज स्टडीज टू मच फॉर ऑर्नामेंटेशन इज एब्रेशन, अडम्ब्रेशन, अप्रोप्रिएशन, अफेक्टेशन. तो 27 में हमारा जो आएगा कि बहुत ज़्यादा जो ऑर्नामेंटेशन के लिए जो स्टडी यूज़ की जाती है वो अफेक्टेशन के लिए डाली जाती है. Number 28 question. What should a man study according to Bacon in his essay of studies is if his wit be wandering? Mathematics, logic,
लॉ, द स्कूलमैन। इस ऑफ स्टडीज़ में जो बेकन एक बहुत अच्छी लाइन देते हैं, वो क्या कहते हैं कि एक आदमी को स्टडी क्यों करनी चाहिए, एक मनुष्य को स्टडी क्यों करनी चाहिए? अगर उसकी विट वैंडर करती है, यानी कि अगर उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो उसको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? तो 28 के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। Question number 29. Who was it that wanted to reverse the wrongs of fortune of the chimney sweeper in Lamb's essay in praise of chimney sweepers? The noble Rachel's, Mr. Reed, Sloop the Hub Woman's Darling या जेम्स वाइट? तो 29 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? जेम्स वाइट। इसका आंसर जो हो जाएगा जेम्स वाइट। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करते हैं। What is the subtitle of Thomas Hardy's novel The Mayor of Casterbridge? Losses and Gain, The Life and Death of a Man of Character, A Pure Woman Faithfully Presented या Penance and Forgiveness? तो 30th का जो आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का वो हो जाता है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स जगन द प्रोटैगनिस्ट वांट्स टू पब्लिश ए बुक ऑन। देखिए ये क्वेश्चन भी लास्ट एग्जाम में भी आया हुआ है, उसमें उसके बारे में पूछा गया था। द ग्रेट एपिक गीता, द नेचुरल वे ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ कुकिंग स्वीट्स या गांधीयन थॉट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाता है? द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। नेचुरल वे क्या होना चाहिए लिविंग का, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उस बुक में वो पब्लिश करवाना चाहता था। लेट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट काइंड ऑफ ए मशीन डिड जगन क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट काइंड ऑफ ए मशीन डिड जगन्स सन माली वांट टू इन्वेस्ट इन द वेंडर ऑफ स्पीड? A beer vending machine, a sweet making machine, a story writing machine, a socks making machine? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है 32 का वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, ए स्टोरी राइटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। which is 5 miles meandering in a mazy motion is an example of। लेकिन इसका आंसर जो है वो खुद आरपीएससी ने ही नहीं दिया है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन द सेंटेंस हंगर सेट मिजरेबली इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट देयर इज द यूज ऑफ सिंडॉकी, यूफेइज्म, ट्रांसफर्ड एपिथेट और पर्सोनिफिकेशन। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ए नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एक्सचेंज्ड बाय कैरेक्टर्स इन द स्टोरीज इज डिस्क्राइब्ड एज जर्नलिस्ट, एपिस्टोलरी, मेमोर, रिपोर्टेज। तो इसका जो आंसर है 35 का वो हो जाएगा हमारा एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इस जो वर्ड है ग्रेजुएट, इसमें स्ट्रेस कहाँ पर लगाया गया है वो क्वेश्चन पूछा गया। ग्रेजुएट टेक्स द स्ट्रेस ऑन। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है वही हमारा इसमें करेक्ट आंसर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। In section 5, what the thunder said of the wasteland, the line he who was living is now dead रेफर्स टू, यानी कि ये जो पोइम है द वेस्टलैंड, जिसमें 5th सेक्शन जो पोइम का दिया गया है व्हाट द थंडर सेड, उसमें एक लाइन दी गई है ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड रेफर्स टू द फिनोशियन, जीसस क्राइस्ट, सेंट एगस्टाइन या यूगनेडीज। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38। हुज बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन पेंटर्स द बर्थडे पार्टी? हैरोल्ड पेंटर का जब हम पढ़ते हैं द बर्थडे पार्टी, यहाँ पर किसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया है? यहाँ पे पैटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मैग का, स्टैनले का या लुलू का? तो 38 पे जो आंसर आता है वो आता है स्टैनलेस बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 39।
द डिफरेंस बिटवीन पिडगिन एंड क्रियोल इज ऑफ। यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है पिडगिन और क्रियोल जो लैंग्वेज सिस्टम है उसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जा रहा है। मियरली द वे दे आर नेम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द नंबर ऑफ स्पीकर्स नन इन पिडगिन एंड मैनी, टेम्प्रो temporariness and stability in Creole. Sorry. Option number 4, how they structurally analyzed. तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा जो आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस? How are languages learned? How languages are learned by people? Languages are learned by people. How languages are learned by people? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन मॉडल्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एबिलिटी, क्योंकि ये पास्ट एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट मॉडल। यू ब्लैंक लाफ एट हिज मिस्टेक्स। एडवाइस किया जा रहा है कांट, शुडंट, कुडंट, वॉन्ट। तो यहाँ पे 42 में जो करेक्ट आंसर होगा शुडंट, एडवाइस के सेंस में है यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। 43 number question, a salient feature of a good précis is that it adds to the content of the original passage, paraphrases the original passage in detail, gives all the essential information accurately and concisely, या फिर option number 4, concludes with the writer's opinion about the passage। तो 43 में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है, gives all the essential information accurately and concisely। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज द बेस्ट वे टू राइट ए प्रेसी। समराइज द पैसेज इन योर ओन लैंग्वेज, लिस्ट ऑल इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज, इंक्लूड ऑल एग्जाम्पल्स गिवन इन द पैसेज और यूज डायरेक्ट स्पीच। तो 44 में हमारा जो आंसर होगा कि बेस्ट वे क्या है प्रेसी राइट करने का, समराइज द पैसेज इन योर ओन लैंग्वेज। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट हेडिंग ऑफ अ लेटर कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट हेडिंग किसी भी लेटर का कंसिस्ट करता है क्या चीज को? द रिसीवर्स एड्रेस एंड डेट, द राइटर्स एड्रेस एंड डेट, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर एंड डेट, या द डेट ओनली। तो 45 में जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, द राइटर्स एड्रेस एंड डेट। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द बॉडी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर कंटेन। ऑफिशियल लेटर जो होता है उसकी बॉडी में क्या, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का होता है? डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जनरल रेफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द रेसिपिएंट, इंक्वायरी अबाउट द रेसिपिएंट्स हेल्थ, गुड विशेस फॉर द फैमिली ऑफ द रेसिपिएंट। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो 46 का क्या हो जाएगा कि किसी भी ऑफिशियल लेटर में जो बॉडी ऑफ लेटर होता है वो उसमें क्या क्या वो चीज़ें शामिल होती हैं? डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, कि जिस चीज़ के लिए संप्रेषण किया जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस आपसी पत्र व्यवहार किया जाना है, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, लेकिन वो शॉर्ट एंड स्वीट पैनल में होना चाहिए, डिटेल्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर टू अ फ्रेंड। किसी भी फ्रेंड को अगर लेटर लिखना है तो हमारा करेक्ट सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए, क्या उसमें बताया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा योर्स सिंसियरली, ऑप्शन नंबर 3। 48 क्वेश्चन नंबर, ए रिपोर्ट इज ए और एन ornamental description, imaginative account, factual and accurate account, statement of writer's opinion। तो 48 में क्या चीज़ होती है कि वो फैक्चुअल रिपोर्ट क्या होता है, वो फैक्चुअल होती है और एक्यूरेट अकाउंट पे ही उसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स फेथ इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, पेसिमिज्म या रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट। तो 49 नंबर क्वेश्चन में हमारे
जो हम इस पोइम को पढ़ते हैं ऑन इज ब्लाइंडनेस, उसमें जो पोइट का जो एक्सप्रेशन है लास्ट में वो क्या होता है, वो गॉड के वे में, यानी गॉड की जो इच्छा है उसी में अपनी एक यकीन को यकीन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट? One who bears his burden best, one who presents a true account of his talent, one who doesn't allow talent to become useless, one who makes full use of his talent। तो यहाँ पे गॉड की जो सर्विस है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन करता है, ऐसा कौन सा विश्वास मतलब यहाँ पर बताता है मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, कि जो अपने बर्डन है लाइफ के उसको अच्छे से बियर करता है वो गॉड का सर्व करता है सबसे अच्छे तरीके से। 51 में है, ऑफ ऑल द स्ट्रेंज वंडर्स दे द strangest in Donne's poem, Go and Catching a Falling Star would be to catch a falling star, to discover the years gone by, to learn टू हियर मर्मेड सिंग, टू फाइंड ए वुमन फेयर एंड फेथफुल। तो हमारा आंसर यही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, टू फाइंड ए वुमन फेयर एंड फेथफुल। 7 टास्क दिए जाते हैं, वो कहता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन एक ट्रू और फेयर वुमन दोनों चीज़ें एक साथ अवेलेबल नहीं हो पाती है, नहीं मिल सकती है आपको लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, व्हाट इज इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई, द स्टार दैट शाइन, द लोनली क्लाउड्स, द वेल्स एंड हिल्स, द डैफोडिल्स। तो 52 में हमारा जो आंसर है वो क्या है कि डैफोडिल्स ही फ्लैशेस अपॉन इनवर्ड आई, डैफोडिल्स को वो रिप्रेजेंट करता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर ड्रिवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचैंटर फ्लेइंग, हु और व्हाट इज ड्रिवन लाइक घोस्ट इन शैलीज ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड जो शैली की लिखी हुई बहुत अच्छी पोइम है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है या क्या चीज़ है जो घोस्ट की तरह ड्रिवन करती हैं? द वेस्ट विंड, द डेड लीव्स, द विंग्ड सीड, द क्लाउड्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा द डेड लीव्स। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द अर्न इन कीट्स ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज एड्रेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, एटिक शेप, बोल्ड लवर, ग्रीन अल्टर और मिस्टीरियस प्रीस्ट। तो यहाँ पे 54 में हमारा आंसर आएगा ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में किस चीज़ को एड्रेस किया जाता है एक्सप्रेशन के द्वारा, एटिक शेप को बताया जाता है, उसकी ग्रीस से था। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ड्यूक इन ब्राउनिंग्स पोएम माय लास्ट डचेस एड्रेसेस फ्राप एंडोल्फ, द मेड ऑफ डचेस, द मैसेंजर फ्रॉम द काउंट हु ब्रिंग्स अ मैरिज प्रपोजल, या द ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूक ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है माय लास्ट डचेस, इसमें जो ड्यूक है वो किसको एड्रेस कर रहा है, यहाँ पे वो एड्रेस करता है द मैसेंजर फ्रॉम द काउंट हु ब्रिंग्स ए मैरिज प्रपोजल फॉर हिम। ठीक है, और ये अपनी लास्ट डचेस के बारे में पूरी सारी बातें जो है उससे वो बताता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये पोएम। द ड्यूक इन ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेस कम्स अक्रॉस एज ए नोबल एंड जनरस सोल, ए पजेसिव एंड egoistical person, ए लवर ऑफ हॉर्सेज, ए मैन ऑफ ऑनर। तो 56 में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए पजेसिव एंड इगोइस्टिकल पर्सन, जिसको अपना 900 ईयर्स का जो एक डायनेस्टी का जो एक कल्चर है, लव है, ईगो है, उसको वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टिपिकल थीम ऑफ द यूनिक्स सॉन्ग इन कमला दास द डांस ऑफ यूनिक्स इज पॉवर्टी एंड पेन, फ्लड्स एंड फायर, लवर्स डाइंग, चिल्ड्रन अबंडेंट। तो यहाँ पे 57 में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा लवर्स डाइंग। 58 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमन बोर्न शेल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट अगेंस्ट। इसमें ये जो प्रोफेसी है विचेस की वो क्या होती है कि कोई भी महिला से उत्पन्न या महिला से के गर्भ से निकला हुआ कोई भी मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कौन से ऐसे फाइट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि मैकबेथ किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है उस वक्त ये प्रोफेसी जब की जाती है, तो ये होता है कि मैकडफ जो है वो उसको नहीं कर पाएगा।
फिर है 59 नंबर क्वेश्चन, देर इज नन बट ही और हुज बीइंग आई डू फियर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन किससे मैकबेथ एडमिट करता है कि उससे डर लगता है, मतलब मैकबेथ को डर लगता है। किसके बारे में बात की जा रही है? मैकडफ, मेलकॉम, बैंको और रॉस। तो 59 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बैंको, क्योंकि बैंको को ये मार देता है और उसका घोस्ट इसको दिखाई देता है। ठीक है, फिर है 60 नंबर क्वेश्चन, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स एज यू लाइक इट से ली गई ये जो लाइन्स है वो किसने बोली हैं इस प्ले में? द अबव लाइन्स आर स्पोकन बाय ऑरलैंडो, द ड्यूक, जैकस या टचस्टोन। तो 60 में जो हमारा आंसर आता है वो आ जाता है जैकस के द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इन बेकन्स व्यू द पर्पज ऑफ रीडिंग शुड प्राइमरली बी to become a scholar, to contradict others, to find matter for conversation or to weigh and consider। तो 61 में हमारा जो आंसर आएगा टू वे एंड कंसीडर, कि यहाँ पे पर्पस ऑफ रीडिंग क्या होना चाहिए प्राइमरली, कि सोच समझकर बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 वहीं था। Charles Lamb in his essay in praise of chimney sweepers compares them on their early morning rounds to metal larks, little monies, acrobats या swallows। तो 62 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा मेटल लार्क से इसको कंपेयर करता है। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। Which of the following expression is not used by Lamb to describe chimney sweepers? Clergy aims, innocent blackness, dim specks, sable sweepers। तो 63 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होता है sable sweepers। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रेज व्हाट इज द माइकल हेंचार्ड्स प्रोफेशन। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी दोनों एग्जाम पेपर में पूछा गया है जो प्रीवियस हुए हैं 2011 में और 2013 वाले में। ठीक है, तो 64 में भी यही माइकल हेंचार्ड के प्रोफेशन के बारे में पूछा गया, उसके काम के बारे में पूछा गया। 64 नंबर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हेयर ड्रेसर ये था। 65 नंबर क्वेश्चन, द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेज डज हेंचार्ड मेक। वो कौन सी प्लेज लेता है? नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स, टू सर्च फॉर हिज वाइफ एंड मेक अमेंड्स, टू चूज अ बेटर वाइफ फॉर हिज सेकेंड मैरिज, टू लिव द गॉड फियरिंग लाइफ ऑफ अ गुड सिटीजन। तो 65 में वो पहले हम जब देखते हैं इस नॉवल को पढ़ते हैं तो यही आता है, नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स, अगले 21 साल तक वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। सॉरी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इन आर्क एन अराइंस द वेंडर ऑफ स्वीट्स एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ जगन्स ट्रांसफॉर्मेशन? माली, द हेयर ब्लैकनर, द कजन, द ग्रेस। तो 66 में हमारा जो आंसर आता है वो आता है द हेयर ब्लैकनर। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए पोइम इन विच ए सिंगल स्पीकर एट a critical moment addresses another whose presence is implicit in what the speaker says is a soliloquy, the aside, a dialogue, a dramatic monologue। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 67 का 4 नंबर, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें एक आदमी लगातार बोलता रहता है, दूसरा जो है उसमें उसकी प्रेजेंस को तो दिखाया जाता है, प्रेजेंस को दिखाया नहीं जाता लेकिन प्रिटेंड ऐसा किया जाता है जैसे मानो कोई आपको सुन रहा है। सिंगल स्पीकर जो है वो अपनी बात को कहता रहता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम द माय लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का देख चुके हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड दैट इज करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लंच, सिलेक्ट, फ्रीडम, टीचिंग। हमें ये देखना है कि कौन सा इनमें से करेक्टली ट्रांसक्राइब किया गया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड लेटर गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वोवेल्स ट्रांसक्राइब्ड। तो यहाँ पे लेटर में 69 में जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। 70 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है ऑप्शन जेम, जॉम, जैम, जिम। तो यहाँ पे 70 में हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है उसका एक्चुअल वर्ड हमें देखना है, तो वो हो जाएगा हमारा जर्म।
71 number question. The wasteland of T.S. Eliot is in the form of fragmentary monologues, an extended dialogue, a discursive debate, a literary discussion. तो वेस्टलैंड किसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, किस फॉर्म में दिया गया है 71 में? तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग्स। इसके 5 सेक्शंस हम देखते हैं ना, वो है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द लिटरेरी सोर्स ऑफ विच इलियट ओज द टाइटल ऑफ हिज पोएम द वेस्टलैंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा गया है। 72 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये इसके इंट्रो में बहुत बार अच्छे से मेंशन किया जाता है। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन, मीनिंग्स इज और orchestrated by painter in the birthday party by subtle devices. Which of the following is most Pinteresque in evoking meanings? Meg and Patty's banal exchanges about what the newspaper reports, Meg's evening dress, McCann and Goldberg's destructive quizzing of Stanley, या लुलूज फ्लर्ट्रेशन। कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो मीनिंग्स को शो करती है 73 में? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैकन एंड गोल्डबर्ग्स डिस्ट्रक्टिव क्विजिंग ऑफ स्टेनले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इन अनीता देसाई Cry the Peacock centers on the Ceylon countryside, the protagonist's obsession with the past, the fullness and promise of the present, the protagonist's hope for the future। तो यहाँ पे 74 में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये होता है, द प्रोटैगनिस्ट ऑब्सेशन विद द पास्ट। उनका जो ऑब्सेशन है एक फैटल प्रोफेसी या प्रेडिक्शन जो उनके बारे में की जाती है आई एम सॉरी, उसके बारे में उसका जो एक ऑब्सेशन है वही इस पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 75, द मेजर एक्शन ऑफ द नोवेल क्राई द पीकॉक टेक्स प्लेस इन द गार्डन, इन द सिटी क्लब, इनसाइड बंगलो, इन मायाज माइंड। तो 75 में इसका आंसर है वो क्या है, मायाज माइंड। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए लिमिटेड स्पीच कोड यूजफुल ओनली इन अ लिमिटेड सिचुएशन इज कॉल्ड आइडियोलेक्ट, क्रियोल, पिडगिन, डायलेक्ट। तो 76 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पिडगिन। नेक्स्ट देखिए, ए मिक्स्ड लैंग्वेज दैट डेवलप्स इनटू ए फुल लैंग्वेज एंड एक्वायर्स नेटिव यूजर्स इज क्रियोल, आइडियोलेक्ट, लिंग्वा फ्रैंका या डायग्लोशिया। 77 में आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियोल। देखिए बार बार इनकी डेफिनेशंस के बारे में ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, या उनकी जो एक पर्टिकुलरली सिंपल कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Switching from one code to another is a matter of individual choice. Code switching is a strategy adopted in response to situational features. Code switching is restricted to multilingual societies. Code switching is not context governed। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो 78 का जो आंसर है वो बोर्ड ने कुछ भी नहीं दिया है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। मूव ऑन करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। Educational psychology uses those researches in educational circumstances which are related to man and other living beings. This definition of educational psychology has been given by C.H. Judd, C.E. Skinner, Professor Trow, Crow and Crow। तो 79 का जो आंसर है वो हमारे पास आता है C.E. स्किनर का ये आंसर दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन हेल्प ए पर्टिकुलर टीचर टू डिसाइड फॉर हरसेल्फ व्हाट शी शुड डू इन हर पर्टिकुलर सिचुएशन विद हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। दिस व्यू हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय कॉल्सनिक, कुपुस्वामी, ब्लेयर, गैरिसन एंड अदर। तो 80 में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कॉल्सनिक जी ने ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज स्किनर, डेविस, स्टाउट या बी एन झा। तो 81 का जो आंसर है वो आता है स्टाउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, प्लेटियो इन द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स। जो हम अधिगम के पठार पढ़ते हैं ना, प्लेटियो इन द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स नो फैटिग, टास्क इज सिंपल, वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट। की जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, किसी लैंग्वेज लर्निंग में या किसी भी कॉन्सेप्ट को जब पढ़ा जाता है, जब उसमें इंटरेस्ट धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पर प्लेटियू हमारे लर्निंग में आ जाता है। 83 नंबर देखिए, व्हिच वन इज़ नॉट देयर इन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग? लॉ ऑफ एनवायरनमेंट, रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ एक्सरसाइज? तो यहाँ पर हम जब थॉर्नडाइक के हम पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी आता है, लॉ ऑफ रेडीनेस भी आता है, लेकिन लॉ ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग इज? इनसाइट लर्निंग जो है अंतर्दृष्टि का जो अधिगम है, वो किसने दिया है 84 में? तो हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ये दिया है कोहलर ने, जिन्हें हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। लेट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 85, द इनिशिएटर ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज? देखिए, कॉग्निटिव थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब साइकोलॉजी पढ़ने वाले नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी पता होगा। 85 में इसका जो आंसर है वो आता है जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स हैव बीन कंसीडर्ड एज मेन पॉइंट्स इन सेल्फ एक्सपाउंडेड फंक्शनल अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग बाय ब्रूनर? 3, 4, 5 और 6? तो 86 में जो आंसर है वो हमारा जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है, इसको नहीं लिया गया कुछ भी। नेक्स्ट देखिए, द थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑफ एडविन आर गुथरी इज? ह्यूमैनिटेरियन थ्योरी ऑफ लर्निंग, रीजनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉन्टिग्यूटी रिलेटेड थ्योरी या स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग? तो 87 में जो इसका आंसर है वो है कॉन्टिग्यूटी रिलेटेड थ्योरी, जो है एडविन गुथरी ने दिया है। रीट में भी अभी इसका क्वेश्चन आया था। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज इररेलेवेंट विद द रेफरेंस टू प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू एडोलसेंट्स? तो एडोलसेंट्स शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर क्रिएटिव एबिलिटीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एडोलसेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड गाइडेंस इन देयर पर्सनल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम, तो हम इसको भी सही मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडोलसेंट्स शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेलियर। और ऑप्शन नंबर 4, एडोलसेंट्स शुड बी स्ट्रांगली स्कोल्डेड फॉर देयर इम्प्रॉपर एक्शंस। तो यहाँ पर ऊपर वाले जो तीनों क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो एकदम करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उनको स्ट्रांगली स्कोल्डेड नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था में डांटना तो है ही नहीं है, समझाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, चूज द राइट अल्टरनेटिव विद द रेफरेंस टू बांडुरास प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि यहाँ पे जो बांडोरा की जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसके बारे में पूछा जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 15 ईयर्स, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 25 ईयर्स, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है 89 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो कंटिन्यू करती है कहाँ से, वॉम टू टॉम तक, यानी कि गर्भावस्था से हमारी मृत्यु तक ये कंटिन्यू रहती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, एज द टीचर हिमसेल्फ इज कॉम्पिटेंट ही डज नॉट रिक्वायर एजुकेशनल साइकोलॉजी, लॉ ऑफ लर्निंग डेवलप ऑटोमेटिकली इन मॉडर्न टीचिंग, laws of learning develop automatically in modern teaching, teaching is not expected to know teaching methods, a teacher efficient in the laws of learning can teach successfully। तो बिल्कुल सही है, 90 में हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा कि एक टीचर एफिशिएंट कब होता है, जब वो सारे लर्निंग के लॉज को अच्छे से समझता है, उसने उसको पढ़ा हुआ है, समझा है, सीखा है, तो वो एक अच्छा जो है एक अच्छा टीचर बन सकता है और अच्छे से पढ़ा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर मूव ऑन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन आर ओरिजिनल बिहेवियर्स थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग, द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है जी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ, विच वन इज नॉट
इंक्लूडेड इन स्टेप्स ऑफ लर्निंग, मोटिव, गोल, बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन। तो 92 में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट हो जाता है कि इसको इन लर्निंग के जो स्टेप्स है उसमें शामिल नहीं किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, विच एजुकेशनिस्ट एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट विद रेफरेंस टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। कैट पर किस एजुकेशनिस्ट ने ट्रायल किया था, ट्रायल और एरर लर्निंग की प्रयास और त्रुटि और सुधार का जो एक कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था 93 में, ये दिया था हमारे थॉर्नडाइक जी ने। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। When did the Russian psychologist I.P. Pavlov present the theory of conditioned response? कौन से ईयर में, देखिए कितना डिटेल से पूछा जा रहा है इन सब के बारे में। तो अपनी तैयारी को अगर बेहतरीन बनाना है तो इनकी जो पर्सनल जो एक इंट्रो है इनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में, इनकी एजुकेशन, इनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इनकी थ्योरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा इन द ईयर ऑफ 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गुड फैमिली विद हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड जॉयस एंड फ्री एनवायरनमेंट contributes greatly to the growth of mental health of a child. This notion concerning mental health is given by, किसने दिया है, प्लांट ने, फ्रेंडसन ने, कुपुस्वामी ने या क्रो एंड क्रो ने। तो 95 में हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में पता लगता है कि हमारे जो कुपुस्वामी जी हैं ना, इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने इसके बारे में दिया है कॉन्सेप्ट। 96 में क्वेश्चन देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द नेचर, मेंटल लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, ये स्टेटमेंट किसने दी है। वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को याद रखना बड़ा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर दी गई हैं। तो बहुत रैंडमली आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपको अच्छे से डिटेल पता है या थोड़ा भी आइडिया है तब भी आपको इसके ऊपर इन क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, वरना इनको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी किसी को याद हो जाती है, किसी को नहीं भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 96 का है 1, वो है डगलस एंड हॉलैंड, इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। द इमोशनल डेवलपमेंट इन adolescence is so strange that an adolescent behaves differently on different occasions under the same circumstances. The circumstance that fills him with delight on one occasion make him gloomy on another occasion. बिल्कुल सही बात है। Which scholar drew this inference with regard to the emotional development of an adolescent? Alice Crow, B.N. Jha, Harlock या कारमाइकल। ये किसने दिया है ये स्टेटमेंट, तो ये दिया है बी.एन. झा ने, कि कोई एक चीज़ अगर आज आपको खुश करती है तो दूसरे पॉइंट पे आप उसी चीज़ से परेशान भी हो सकते हैं। तो ये एक बिहेवियर का जो इन्फ्रेंस है वो किसने दिया है, बी.एन. झा ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, मेंटल हाइजीन, ये तो आज के टाइम में बहुत एक प्राइमरी फोकस वाला टॉपिक है। मेंटल hygiene has to be primarily with the development of more wholesome relationship. It means applying to everyday living what has been learned with regard to the behavior of human beings. The statement was made by, ये statement किसने दिया है mental hygiene का, तो ये statement दिया है 98 का स्किनर जी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, व्हेन डिड हल पब्लिश हिज लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन इट्स न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म में इसको कब इन्होंने पब्लिश करवाया था, 1951, 1930, 1932 या 1933। तो 99 क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन्होंने यहाँ पर बोर्ड ने डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। और इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, वो भी बोर्ड ने पहले ही डिलीट कर दिया गया है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द टास्क ऑफ मोटिवेटर एज स्टेटेड बाय गेट्स। तो इसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं हम। व्हेन वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग्स सेटअप। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में ये कब चीज़ें सेटअप हुई थी, है ना। तो काफ़ी अच्छा एक हिस्ट्री जो है साइकोलॉजी की इंडिया में वो पूछा गया है। 101 का जो आंसर है वो यही आता है 1966 में।
102 क्वेश्चन नंबर देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैंस लर्निंग कंडीशन. दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज गिवन बाय G.O.M. लीथ, B.C. मैथीज, रॉबर्ट ए कॉक्स या जॉन लीदम. ये किसके द्वारा दिया गया था 102 में? ये दिया गया था रॉबर्ट ए कॉक्स. अगर मैं मेरा पर्सनल अगर कभी बात करूँ तो मुझे शायद अगर इसके बारे में नहीं पता हो तो मैं इस क्वेश्चन को कभी नहीं करूँगी. थोड़ा बहुत भी अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो तभी आपको इन क्वेश्चंस की ओर बढ़ना चाहिए, वरना इनको गिव अप ही कर देना चाहिए, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन मेरिट को पूरी तरह से चेंज कर देता है और आपको सिलेक्शन की दौड़ से भी निकाल देता है. तो जिन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस हो, तैयारी हो आपकी, तभी उनको करना चाहिए, वरना प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ नहीं लगाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103, इंस्ट्रक्शनल technique includes tape recorder, record player, television and other materials based on teaching machine which help in teaching larger groups of students in lesser time and expenditure. Credit for the development of this technique is given to 103 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर है, यानी कि ये जो टेक्निक है वो किसने दी है? ब्रूनर एंड ग्लेसर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन बेसिस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, द एफर्ट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, द एफर्ट टू मेक द डिजायरेबल मॉडिफिकेशन इन टीचर्स बिहेवियर, द एफर्ट टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पे 104 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स in the process in teaching learning. Let's move on to question number 105. What is not included in computer assisted instruction out of the following? It is an important means of obtaining facts and information for teachers and students. It is interesting, brief and result oriented. Being machine based, it is without intimacy. It provides objective and specific support to the student. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीइंग मशीन बेस्ड, इट इज विदाउट इंटीमेसी. 106 number question, which statement is inappropriate with the regard to computer aided learning? It is very expensive, softwares are easily available for it, this there is possibility of computers getting out of order frequently, या there is a possibility of a student's time getting wasted as he learns on his own. CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग. तो यहाँ पे 106 में जो आंसर है वो ये हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आर इजीली अवेलेबल फॉर इट. 107 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ स्ट्रेटेजी विच हेल्प्स इन सीक्वेंसिंग टीचिंग मटेरियल in such a way that makes possible the expected behavioral change in students and also its measurement. तो ये किसने दिया है? 107 का जो स्टेटमेंट है ये दिया है सुजैन मार्कल ने दिया है. नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस थ्रू विच two or more person exchange ideas, facts, feelings and effects in such a way that the person receiving communication can understand the meaning, purpose and use of the message well. This meaning of communication has been expounded by. ये statement जो है वो किसने दिया है? 108 में हमारा जो आंसर है 108 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा पॉल लीगन ने ये आंसर इसका स्टेटमेंट जो है वो दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं. 109 नंबर क्वेश्चन है, वी वुड लाइक ब्लैंक मोर हेल्प फ्रॉम यू, मैनी, सम, फ्यू, ए. तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 109 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Would you like some more help from you? We would like some more help from you. 110 number question है, blank better solution can still be worked out more the a such. तो 110 में हमारा जो आंसर है वो ये होगा a better solution. ठीक है. नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, देर इज हार्डली ब्लैंक रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस. तो ऑप्शन यहाँ आ जाएगा हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज intention. 112, he is blank last candidate to be interviewed. A, the very most. तो 112 में हमारा आंसर आएगा he is the last candidate to be interviewed. 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, the blank
sorry, blank student will have to fill in a separate form, all, much, each, few. 113 में हमारा आएगा each student will have to fill in a separate form. 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. blank people who came were also not interested in the program, the few, every, much, any. तो यहाँ पे 114 में आएगा the few people who came were also not interested इन द प्रोग्राम. 115 क्वेश्चन नंबर देखिए. आई डू नॉट ब्लैंक व्हाट ही वांट्स. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 115 में? आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स. 116 शी ब्लैंक द जॉब लास्ट ईयर, हैज लेफ्ट, लीव्ड, वाज लीव, लेफ्ट. तो 116 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शी लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 117. ये क्वेश्चन क्या कहता है? मैनी ए फ्लावर ब्लैंक बॉर्न टू ब्लूम अनसीन, आर, इज, बीइंग, हैविंग. 117 में हमारा आ जाएगा इज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वन ऑफ माई बुक्स ब्लैंक स्टिल मिसिंग. तो यहाँ पे माई बुक्स में से वन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा 118 में वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग. नेक्स्ट देखिए 119 नंबर क्वेश्चन. दे ब्लैंक ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड. तो यहाँ पर आ जाएगा दे हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड. 120 नंबर क्वेश्चन. हैड यू स्पोकन अर्लियर यू ब्लैंक सीन अ ब्यूटिफुल सनराइज, वुड हैव, विल हैव, वुड बी, वुड हैव बीइंग. तो यहाँ पे 120 का आंसर क्या होगा? वुड हैव सीन अ ब्यूटिफुल सनराइज. अब बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की ओर. अंटिल ही ब्लैंक हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट, फिनिशिंग, विल हैव फिनिश, नॉट फिनिशेज या फिनिशेज. तो 121 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, फिनिशेज. अब बढ़ते हैं 122 क्वेश्चन नंबर की तरफ. मच ब्लैंक सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, हैपेंड, वॉज हैपेंड, हैज हैपेंड, बी हैपनिंग. 122 में ऑप्शन आ जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3, मच हैज हैपेंड सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस. 123 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आई थिंक यू ब्लैंक टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली. तो यहाँ पे यूज्ड, नीड, मस्ट, शुड. तो 123 में हमें क्या दिया गया है? आई थिंक यू नीड टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली. 124 नंबर क्वेश्चन है. यू ब्लैंक बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, डेयर, हैव, मस्ट, ऑट. तो 124 में ऑप्शन आ जाएगा हमारा 3. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ. ओपन द डोर दैट सो दैट वी ब्लैंक कम इन. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. कैन, मस्ट, नीड, विल. ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा कैन. ओपन द डोर सो दैट वी कैन कम इन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर. यहाँ पर पूछा जा रहा है वन शुड नॉट डिपेंड एंटायरली ब्लैंक अदर्स, एट, ओवर, ऑन, फोर. 126 में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑन. वन शुड नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन अदर्स. क्वेश्चन नंबर 127. ही मैनेज्ड टू वॉक ब्लैंक द ब्रोकन ब्रिज बिटवीन, अक्रॉस, इन, एट. 127 में आ जाएगा अक्रॉस. आगे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन. आई कैन नो लॉन्गर पुट अप ब्लैंक हिज रूड बिहेवियर, फ्रॉम, बाय, एट, विद. तो 128 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर. 129 नंबर क्वेश्चन. ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड ब्लैंक टी, ऑन, एट, टू, बाय. 129 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 130. शी वॉज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हर सन्स सक्सेस. ऑप्शन है इन, ऑफ, फॉर, इंटो. तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑफ. शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन्स सक्सेस. क्वेश्चन नंबर 131. वी वर सरप्राइज ब्लैंक हिज सडन डिसीजन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, एट. तो 131 में जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा एट, सरप्राइज्ड एट his sudden decision. Question number 132. He said that he had not blank a more enjoyable movie, seeing, seen, saw, see. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 132 में जो आंसर दिया गया है बोर्ड का वो है seen. He had not
seen. नेक्स्ट देखिए 133, द दिस ड्रेस इज नियरली ब्लैंक आउट, वियर, वॉर, वॉर्न, वोर्ड. 133 में जो आंसर आता है वो आ जाता है वॉर्न. नेक्स्ट देखिए 134, टुडेज मीटिंग हैज़ बीन ब्लैंक्ड. फ्रेजल वो पूछा गया है कॉल्ड अप, कॉल्ड इन, कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑफ. 134 में जो आंसर आ जाएगा कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर. द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्लैंक देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे. हैंड आउट, हैंड इन, हैंड अप, हैंड ऑन. 135 में जो आंसर आ जाता है वो आता है हैंड इन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, इट इजंट ईजी टू ब्लैंक चिल्ड्रन नाउ अडेज, ब्रिंग अप, केयर अप, स्पीक अप, डील अप. 136 में जो आंसर है वो हो जाएगा bring up. It isn't easy to bring up children nowadays. Question number 137, the thief blanked the house even though it was securely locked. Breaked into, broke into, ब्राक्ड इंटो, ब्रेक इंटो. तो यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग्स हैं इसमें ही थोड़ा ज़्यादा फ़र्क दिया गया. फ्रेजल वो भी है. 137 में आंसर आ जाएगा ब्रोक इंटो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ही सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है थर्ड नंबर, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज. 139 number question, my mother said don't go very far into the sea. Again indirect question है ये. My mother told me about going far into the sea. My mother advised to not go out far into the sea. My mother told me not to go very far into the sea. My mother suggested that I should not swim far. Question number 139 के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर थर्ड, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी. लेट मूव ऑन टू 140 क्वेश्चन. हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, शी सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं 140 में उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाता है, शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ. द प्रिंसिपल में सैंक्शन योर लीव टुडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस. इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है ऑप्शन जो देखते हैं तो इसमें सीधा ही यही आंसर आ जाता है 141 में. सॉरी 141 में ये आंसर नहीं होगा. इसके ऑप्शंस को देखते हैं. योर लीव विल बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल टुडे. द प्रिंसिपल में बी सैंक्शनिंग योर लीव टुडे. योर टुडेज लीव कैन बी सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल. और ये है फोर्थ ऑप्शन, योर लीव में बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल टुडे. तो यही हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है 141 का, योर लीव में बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल टुडे. 142 नंबर क्वेश्चन देखिए. एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर. इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है. ए पीस मेकर ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पीस मेकर. ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर बाय एवरीवन. एवरीवन इज कॉल्ड अ पीस मेकर बाय हिम. तो इसका जो आंसर है 142 का वो हो जाएगा, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर बाय एवरीवन. ठीक है. 143 क्वेश्चन नंबर देखिए. आई कैन नेवर फॉरगेट यू, चेंज इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है. 143 का जो आंसर है वो आ जाएगा, कैन आई एवर फॉरगेट यू. क्वेश्चन नंबर 144, एवरीवन नोज हिम, चेंज इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. इज ही नोज टू एवरीवन, नोज ही नॉट, नोज नॉट एवरीवन दिस मैन, डज नॉट नो हिम एवरीवन, डज एवरीवन नो हिम. तो हमारा जो आंसर है 144 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डज एवरीवन नो हिम. क्वेश्चन नंबर 145, ही लाइक्ड माई सजेशन, चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बन जाता है, सेंटेंस देख लीजिए. ही लाइक्ड माई सजेशन, इट वॉज व्हाट ही लाइक्ड माई सजेशन, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, माई सजेशन वॉज इट दैट ही लाइक्ड मी एंड सजेस्टेड. तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 को. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है, बीइंग इल ही डिडंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, चेंज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड में बदलना, ही बीइंग इल नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये तो नहीं होगा.
It was for the examination that he appeared ill. He was ill and did not appear for the examination. Being ill and not appeared in the एग्जामिनेशन. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है 146 का वो हो जाएगा ही वॉज इल एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. 147 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. टू कॉल अ spade is to be good at playing cards, a perfect gardener, firm and determined, plain and straightforward in speech. तो 147 में जो इसका आना है टू कॉल अ स्पेड, plain and straightforward in speech. क्वेश्चन नंबर 148. द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट इन अ लेटर इज. किसी भी लेटर में जो राइट किया जाता है डेट को, उसका परफेक्ट पैटर्न कौन सा होता है, करेक्ट वे होता है. तो 148 में आता है ये थर्ड नंबर पैटर्न. नंबर 149. एट द क्लोज ऑफ ए फॉर्मल लेटर विच बिगिंस विद डियर सर और मैम वन मस्ट राइट. क्या राइट उसको करना चाहिए 144 के अकॉर्डिंग. तो ये आता है योर्स फेथफुली. ठीक है, कॉमा नहीं आता योर के बाद में. और लास्ट क्वेश्चन जो है इस एग्जाम पेपर का जो हुआ पूछा गया था, द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अ रिटन रिपोर्ट. पास्ट टेंस, पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. तो यहाँ पर इसका आंसर आता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. यहाँ पर नहीं पूछा जाता है. बाकी पास्ट टेंस में भी बताया जा सकता है, पैसिव फॉर्म भी होती है, रिपोर्टेड स्पीच भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम जो ये 2016 में कंडक्ट हुआ था, इसके सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं. ये हमारा तीसरा एक पेपर जो था, वैकेंसीज जो निकाली गई थी 2016 से में निकाली गई थी. तो 2011, 2013 उसके बाद ये तीसरी वैकेंसी का था. और इसी तरह से आगे कुछ जो वैकेंसीज आती रही हैं फर्स्ट ग्रेड की, उसके सारे एग्ज़ाम पेपर हम एक साथ करवा दिए जाएंगे. आप चाहें तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं. तो चैनल के साथ जुड़े रहिए. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.